So in the last video, we learned about how to write program in Java, how to print anything in Java. If you remember, you just need to give whatever you want to print inside this double quotes, inside the parenthesis, and it will print this thing as it is inside your output. Okay, you can see here also. Okay, and we wrote one more program that was related to calculate the sum of two variables and storing inside third variable, right? And if you want to print the result of this third variable, you can print also. Let me show you how you can do. ln is for the next line. Okay, so just need to give this strong, and you can see the age is 50, right? Age of person is 20 and age of person he is 30, and if we sum of these two variables, then it will give us 50, right? Let's change this value. It's 30 and 30. It should be 60, right? Yeah, so you can see here. Okay, so that was related to last video, and let's cover some more topics today. This is program of temperature conversion from Fahrenheit to Celsius. This will be our first program that we are going to write in our first lecture. I mean this lecture, today's lecture. Okay, and once we finish this program, we will look into how to take input from user in Java. If you can see here in this program, we are not taking input from user, we are just assigning, right? I mean whatever variable we are declaring here, we are just assigning the value at the declaration time, right? We are not taking the value or taking the input from the user dynamically, right? So we will see that also. Okay, so and the third point is programming of asking user details and print in final. Like we will create one form like what's your name, age, okay, height, this kind of details, and at the end we will print the details. Okay, and we will write one more program that is related to BMI calculator. Okay, so let's go one by one. First let's do this thing. Okay, so program of temperature conversion from Fahrenheit to Celsius. It's not tough, just be with me, and at the end you will see it's not that tough. It's very easy, I think. Okay, so let's declare one variable that is integer type, not integer type. If you remember, in integer type we can store the whole number, right? I mean ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी प्रिसीजन वाला ले ले, और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो प्रिसीजन में भी होता है। लाइक जैसे डॉक्टर ये बोलता है कि यार तुम्हारा जो योर टेम्परेचर इज 102 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट और डिग्री, जो भी आपको बोलना है, ठीक है? तो हम लोग लेंगे डबल। इफ यू रिमेंबर, लेट मी शो यू आल्सो क्विकली। We have plenty of data types variables, if you remember. Yes. So for storing the whole number, there are byte with some range, there are short, I mean there is short with some range, there is integer with some range, there is long. And if the values are in floating points, then we need to store in either float or double. Float is for less precision. I mean up to 7 precision you can store any value inside float, and if the precision high, I mean if it's greater than 7, then you need to store inside double data type. Okay, okay, so let's go again. So what's this? Temperature in Fahrenheit. Okay, let's, for now we give 104.3 F. Okay, and is double. See, Celsius.
सो व्हाट वी रोट बेसिकली, हम लोग ने टेम्परेचर लिया, दैट इज दिस, लाइक टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। नॉर्मली अगर हम थर्मामीटर से कोई भी अपना फीवर मेजर करते हैं तो फ़ारेनहाइट में होता है, राइट? या फिर हम लोगों को अगर उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है तो देयर इज अ फार्मूला टू कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, दैट इज जो भी आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, उसको आप पहले 32 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1.8 से बेसिकली, तो हम लोग 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी दिस। So you can see the temperature in Celsius there. So we are just calculating the temperature in Celsius if someone is giving the temperature in Fahrenheit. Okay. एंड अगर जैसे आपको थोड़ा इसको और अच्छा दिखाना है आउटपुट में, तो आप कैसे कर सकते हैं कि हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा है, राइट? और हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि अगर आपको कुछ भी एज इट इज़ प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डबल कोट्स में डाल सकते हो, राइट? तो हम यहाँ एज इट इज़ हमको क्या लिखना है कि यार ऐसे लिख दो, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, अब आपने ये लिख दिया, ये एक लाइन हुआ। उसके बाद आपको बस एक प्लस का साइन ऐड करना होगा, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में ये क्यों ऐड कर रहे हैं। ओके, नाउ now you can see, I think now it's looking good, right? Temperature in Celsius and your temperature is this 40 degree. Just have one more space, otherwise it looks in negative. Now you can see 40 point something something something. Okay, so that is our first program when we want to convert a temperature from Fahrenheit to Celsius. I think everything is good, right? So let's go our second thing, that is how to take input from user in Java. Okay, so let's go on the compiler again. पहले एक फिनोमेनन को जानते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ओके, सपोज हम यहाँ पे जावा यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जावा यूज़ कर रहे हैं तो ये पहले से भी एक प्री डिफाइंड लैंग्वेज है। इसका मतलब किसी ने न किसी ने इसको डिज़ाइन किया है। एक कंपनी हो या कोई टीम हो, किसी न किसी ने इसको डिज़ाइन किया है, राइट? तो अगर आप ठीक से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, जैसे हम लोगों ने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट और हमें ये लिख के दे दिया, राइट? एक्चुअली में ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कैसे इसको प्रिंट कर रहा है इस कंसोल पे हमें नहीं पता, लेकिन हमें फीचर पता है कि यार अगर मैं यहाँ कुछ दे रहा हूँ, इस इनपुट में कुछ दे रहा हूँ तो यहाँ प्रिंट हो जा रहा है, राइट? इसका मतलब हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। ओके, जैसे हम ही एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम क्या लिखा, मेरे को इनपुट में अगर कोई फ़ारेनहाइट में देता है तो मैं उसको कन्वर्ट करके किस में दे सकता हूँ, सेल्सियस में दे सकता हूँ, राइट? तो हर प्रोग्रामर का एक लेवल होता है प्रोग्रामिंग का भी। अभी आपने सिर्फ अब कोई ना कोई देखा होगा, वेबसाइट भी होता है ऐसे कि जहाँ पर आप एक वेबसाइट खोलो, जहाँ पर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रहे हो तो आपको सेल्सियस में बता दे रहा है सडनली। ओके, तो क्या यूज़ कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो ये प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा। आप उसके इनपुट में दे रहे हो, कन्वर्ट करके आपको इसमें दे रहा है। तो अगर आप देखें तो आप भी अब इतना प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं कि जिसमें आपको पता चल जाए कि यार हाँ, छोटे-मोटे प्रोग्राम ऐसे होते हैं, राइट? तो हर प्रोग्रामिंग का एक लेवल है। हम लेवल वाइज़ लेवल चलेंगे और हर चीज़ को अनलॉक करेंगे कि यार इसका क्या मीनिंग है? हम इस फीचर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने छोटा-सा फीचर डिज़ाइन किया है अभी कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो ऐसे ही जो ये चीज़ है, तो लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे ही एज़ इट इज़ थोड़ा रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। ठीक है कि इसका यूज़ ये है, इसका यूज़ ये है। आगे जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली कैसे डेवलप किया गया था, जैसे भी ये प्रोग्राम डेवलप किया। ओके, ऐसे ही हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, पहले हम ये सीखते हैं। ठीक है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको डिज़ाइन किया, वो सब बाद में देखेंगे। कि हर चीज़ का एक लेवल है और हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जाएँगे हम लोग, जब भी उस चीज़ को अनलॉक कर पाएँगे, अदरवाइज़ हम लोग लैग कर जाएँगे। ओके, तो अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, बिल्कुल टफ नहीं है, आप डरो मत कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या नहीं लिख रहा हूँ। एट द एंड आई थिंक यू विल सी कि हाँ, चीज़ टफ नहीं है। ओके, आपको एक ये लाइन लिखनी है बस, ऐसे एज़ इट इज़ एकदम, ठीक है? और एक लाइन यहाँ क्लास मेन से ऊपर आपको बेसिकली एक ये फीचर है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई
मेरे जावा की कंपाइलर इस फीचर को यूज़ कर ले यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इस टाइप से आप समझ लीजिए। उसको इंपोर्ट करने के लिए मतलब उसको यूज़ करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, समझ लो आप अभी ये लाइन, ठीक है? ये कहीं न कहीं डिफाइन है और मैं इस फीचर को यूज़ कर रहा हूँ ये, किस चीज़ के लिए? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब सपोज़ मेरा एक डेटा टाइप है, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप है, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ऐज का, ओके? और मुझे उससे अब मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि ऐज मेरी 28 है, क्यों? क्योंकि मैंने डिक्लेयर किया, इसको फिक्स कर दिया है। मैं चाहता हूँ यूज़र इस वैल्यू को दे, तो वो कैसे देगा? ये जो फीचर है ना, ये जो मैंने अब मैं इसका यूज़ करूँगा, जो मैंने लाइन लिखी है इसका, इस फीचर का। अगर आप ऐसे लिखते हैं एससी डॉट नेक्स्ट इंट, बेसिकली इसका क्या मीनिंग है? अब बस अभी थोड़ा-सा आपको देखो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जानेंगे कि हम कैसे एक्चुअली कैसे रीड कर रहा था, कैसे दे रहा था। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, अगर आपको यूज़र से कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है? और अपने वेरिएबल में स्टोर करानी है। तुम्हारा वेरिएबल क्या है? इंटीजर टाइप का, राइट? तो मुझे यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है? इंट टाइप का, ओके? तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके? और आप वैल्यू ले पाओगे। चलो हम इसको देखते हैं कि हम सच में ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, ओके? ले पा रहे थे, इसको हमें प्रिंट करके भी देखना चाहिए यार, जो भी हमने दिया है, ओके? So let's print age. अभी आप एज दो 25, देखा? आपने 25 दिया, 25 प्रिंट हो गया, ओके? अभी इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग प्रिंट करते हैं। आपको याद होगा हम डबल कोट्स में जो भी देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। माई एज इज दिस, ओके? मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज़ भेज दी है, प्लस का मतलब बताओ। इसका जो प्लस का मीनिंग है वो क्या है? मैंने कहा था जो डबल कोट्स में वो एज इट इज प्रिंट होगा, ओके? अब जो एज है वो डबल कोट्स में नहीं है, ये क्या है? इट्स वेरिएबल। इफ इट्स वेरिएबल देन डेफिनेटली इट्स हैविंग सम वैल्यू, इट्स स्टोरिंग सम वैल्यू, राइट? इसका जो वैल्यू होता है वो प्रिंट होता है। ये आउट ऑफ डबल कोट है, पॉजिटिव से प्रिंट नहीं होगा, तो क्या होगा? इसका वैल्यू प्रिंट होगा, ओके? तो आप इसको दो टाइप से प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ऐसे, आपका जो ये रिजल्ट है, आप चाहते हैं जो इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर है, आपको इसे इस डबल कोट्स के साथ प्रिंट कराना है, आपको प्लस का साइन यूज करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, ये वेरिएबल है। अगर आपका दूसरा वेरिएबल भी होता ना, जैसे ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? ये आपके आउटपुट में देगा माय एज इज, ये पूरा का पूरा, ओके? जो कंप्लीट आपने लिखा है, और इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल की, उसके साथ ये ऐड कर देगा, ठीक है? अगर आपका एक और वेरिएबल होता सपोज, और ऐसे मैं लिख दूँ माय फादर्स एज सपोज, ये भी मैं इनपुट यूजर से लेना चाहूँगा। नेक्स्ट इंट, ओके? और माय एज इज दिस, एंड देखो अभी यहाँ से यहाँ तक क्या प्रिंट करेगा? माय एज इज, और इसके बाद आपने ऐड किया क्या? एज, ओके? अब आपको सपोज एक और लाइन प्रिंट करानी है, तो आप क्या करो? अगेन डबल कोट्स आपको देना पड़ेगा, एंड माय फादर्स एज इज व्हाट? आपको फिर इसके साथ ऐड करना है ना, आप इसको यहाँ डाल दो, ओके? इसको थोड़ा देखो कंप्लीट देखते हैं, नॉट दैट टफ, डोंट वरी। तो कैसे प्रिंट हो रहा है, इसको ऐड करके देखते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, एक एज, एक माय फादर एज। दोनों में क्या हो रहा है? मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ये भी इंटीजर डेटा टाइप का, ये भी इंटीजर डेटा टाइप का, ओके? पहले मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ? डबल कोट्स में क्या लिखा है मैंने? माय एज इज, उसके बाद जो भी एज वेरिएबल की वैल्यू है वो, ठीक है? मैंने ऐड कर दिया इस लाइन में। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे और भी एक चीज़ प्रिंट करानी है, क्या? मेरे फादर की एज भी। तो मैं फिर लिखूंगा एंड माय फादर्स एज इज दिस, ओके? फिर उसमें मुझे जो भी वेरिएबल मेरे, जो ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है वैल्यू, इसके एज इट इज प्रिंट करानी है, तो ये प्रिंट कर देगा। लेट्स सी द आउटपुट। अब यूजर इनपुट देगा, राइट? बोल देता हूँ मेरी एज ये है, सॉरी 25, ओके? और मेरे फादर की एज है 45। So you can see the result. My age is 25 and my father's age is 45.
I think you are getting my point. Okay, so this is just for one variable for integer data type. Okay, but हमारे पास तो बहुत सारे डेटा टाइप्स है, राइट? लाइक फॉर स्ट्रिंग if you remember, normally we use to store the name or words or any lines, right? Basically you can say text. अगर हमें कोई भी टेक्स्ट स्टोर करना है, वर्ड्स स्टोर करने हैं, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज स्ट्रिंग, राइट? इफ यू रिमेंबर, वी कैन डायरेक्टली डिक्लेयर लाइक स्ट्रिंग name, and we can give the name inside the double quotes. Okay, so in this way we can store one word also, even one is an engineer, the whole line also. Okay, so let's go through the all data types and we'll see like कि जैसे ये इसका वे है, अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो ऐसे डॉट नेक्स्ट प्रिंट यूज करना पड़ता है। ऐसे ही अगर यूजर से मुझे कोई लाइन लेनी है पूरी की पूरी, ओके, एंड इफ आई जस्ट वांट टू गेट वन वर्ड फ्रॉम यूजर तो कैसे ले सकता हूँ? ओके, मुझे डेटा टाइप जैसे डबल लेना है या फ्लोट लेना है, राइट? इफ यू कैन सी वी हैव प्लेंटी ऑफ डेटा टाइप्स हियर, byte, short, int, long, float, double, character, boolean, right? And for reference, string also. Here you can see all. Okay, so I already have, you can see here. So अगर आपको यूजर से क्या लेना है, बाइट लेना है, तो आप यूज कर सकते हैं sc डॉट नेक्स्ट बाइट। ओके, आपको शॉर्ट लेना है तो sc डॉट नेक्स्ट शॉर्ट। इन द सेम वे यू कैन सी वी हैव some patterns to get the value from users, okay, or to get the input, to get the data, whatever you want to call it, you can call. Okay, तो ये इसके लिए, I mean whole numbers के लिए, and if you want to get same value in precision, so you can use float and double for boolean like true or false. और आपको अगर पूरी लाइन लेनी है लाइक अमन इज एन इंजीनियर, तो आप रीड एंटायर लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, आपको वर्ड लेना है तो एक सिंगल वर्ड जैसे अमन लिखना है तो यू कैन यूज ऐसे डॉट नेक्स्ट, और आप अपने वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। दैट इज ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप। ओके, आपको ये लाइन डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि दिस इज द फीचर जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इनपुट ले पा रहे हैं यूजर्स। ओके, चलो पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। If you remember, I told you that we will cover all of the 4 points. Okay, so this is our third point and this is our fourth point. So now we are going to cover this point. यूज़र डिटेल हम लोग आस्क करेंगे पूरा एक यूज़र से, फिर प्रिंट करेंगे एट द एंड पर पूरा फ्लो देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे एक्चुअली रन करता है। ओके, ऑल ऑफ द